One of the notes I made was कि this feels like Shankar has written कि watch all the films of Shankar and then ChatGPT को बोल दिया कि एक फिल्म निकाल दो उसमें एक से, फिल्म निकाल दिया उसमें से. निकाल दिया, हाँ. वही हुआ इसमें. It even has the exact same Nayak scene where Anil Kapoor is just sort of smothering into the navel of Rani Mukherjee, and this also has the same scene where the politician is doing that to like. Why Yeah. do you remember that of all things, dude? I told you, मैंने नायक इतनी बार देखी है ना हे कि भगवान. I now know कि शंकर क्या कर रहा है, ठीक है. I don't even remember that. ये भगवान. Because I remember that distinctly because of Anil Kapoor's expressions. He's like this. क्या कर रहा है? He's like this is beyond fetish. Godfather नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome to Desi Deep Dive. Yeah, we'll figure out an intro soon. कितने सब्सक्राइबर्स में इतना मिले? नहीं, इतने सब्सक्राइबर में आके फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे, वरना तो सीधा हम पता नहीं रैंडम में शुरू हो जाते थे. पिक्चर के नाम से शुरू होते, टेंशन से ही शुरू कर देते थे. वही. So thank you guys for subscribing. I think we are at something around 436. Last I checked. Yeah. So almost at 500, close to 500. And ये पिछले एक महीने में ही हुआ है. एक महीने पहले हम कहाँ थे? हम कुछ 20-30 में थे. 18-17 में थे कुछ. 18-19 था मेरे हिसाब से. वही 18-19 में था. एंड आई थिंक आफ्टर पुष्पा 2 अपना बहुत बहुत बड़ा बूम हुआ है. नॉट इवन अ मंथ हैज पास्ड. कितना और 7 दिन बचा, एक हफ्ता. सो 3 weeks. I remember मैं WhatsApp पे गया था एंड आई स्क्रोल्ड थोड़ा सा ऊपर एंड आई फाउंड 21 दिसंबर को आई सेंट यू 50 subs ऐसे करके. 50 subs, yeah. And you got so excited by that Godfather reel also. You sent me a lot of statistics of that reel as well. जिसमें हम देख रहे थे कि अरे 3000 views, अरे 5000 views. हाँ, but then that was reciprocated when Unni Mukundan shared that story and I didn't know. and तूने कॉल किया था मुझे. नहीं, वो तो भाई वो तो अलग ही लेवल था. Because for those who don't know, we basically put out a reel, I think day before yesterday, that lighting in that sequence, that fight sequence, stairway fight sequence. Stairway वाला, हाँ. And it was, and I mean, मैंने भी बोल दिया था because it was my favorite sequence. It was a genuine reaction, and that reel was kind of performing okay. I mean, it was getting 20k to 21k views on an average. It was performing like any other reel जो हमारा अच्छा performing होता है. And सुबह हमने रिकॉर्डिंग करी थी अपनी. आई थिंक किसकी रिकॉर्डिंग करी थी? उसकी रिकॉर्डिंग करी थी, प्रतीक वाली रिकॉर्डिंग करी थी हमने ऑफ दैट मार्को वर्सेस एनिमल वर्सेस वाला. एंड वी स्लेप्ट एट अराउंड 5 AM or 6 AM. सो लास्ट बिफोर स्लीपिंग आई चेक्ड द व्यू काउंटर. इट वाज कितना व्यू काउंट था? समथिंग अराउंड 60 समथिंग हो गया था. सुबह सोने से पहले. सुबह सोने से पहले इट वाज एट 25k. एंड जैसे ही मैं सो के उठा, 11 बजे के करीब मैं सो के उठा, एकदम से देखा 70k पे था. मैंने कहा ये ऐसा पिकअप हुआ है, कुछ 5 घंटे में ऐसा पिकअप हुआ है. मैंने कहा ओके, हो गया होगा. मैंने कमेंट्स देखे, कमेंट्स में भी मेरे को ज़्यादा कुछ ट्रैक्शन दिखी नहीं. मुझे लगा बिकॉज ऑफ द लाइक्स इट गॉट पिक्ड अप. देन आई सॉ द स्टोरी मेंशंस. एंड जैसे ही मैंने स्टोरी मेंशन खोला, 4 स्टोरी मेंशन थे. सबसे पहला आई एम उन्नी मुकुंदन. मैंने कहा एक सेकेंड, इज दिस an actual page by that guy or is this the fan page? I was making sure. I went to that page. It was the literal dude who played Marco. वो बंदे ने सीधा I second that बोल के शेयर मार दिया. मैंने तुरंत करा कॉल. मैंने कहा बाढ़ में जाए, तू सो रहा है नहीं सो रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. That was a massive boost which we got. So yeah. So we were very happy. I mean, we are happy with how both the pages are running because see, of course, we are getting negative comments. That is something part and parcel of this thing. Everyone is welcome to share their opinions and they are sharing their opinions. जो respectfully engage कर रहा है उसके साथ हम respectfully engage कर रहे हैं. जो नहीं कर रहा है उसकी बजाई जा रही है. तो it's like ठीक है, तुम जैसा हमारे साथ रहोगे हम तुम्हारे साथ वैसे रहेंगे. जिसको भी हमारी बात से सहमति नहीं है, आके रखो, बिल्कुल बोलो, हमारे बात को काउंटर करो. But don't start attacking us immediately. Yeah, we are human beings. Okay, we've just studied this and we are sharing our opinions. If you just come and directly attack us, then you'll get the attacked. response
then you will the get response attacked. is not going to be very, we'll reciprocate that. We'll reciprocate with equal amount of disrespect you serve us, because we've handled worse criticisms in our filmmaking journey. So हमने Yeah. कैसे कैसे हमने लोगों के सामने पूरे ऑडिटोरियम में हमारी फिल्मों को जिस तरीके से उतारी है ना, इज्जत उतारी है, तो वो सब हमने झेला है. So This this is is like nothing. we have been through filmmaking roadies. Yeah, exactly. जहाँ पे our batchmates have just completely they've laughed at the content. They've Batchmates, criticized it. खाली batchmates, Teachers, Exactly. batchmates. हाँ. भाई We've सब been कुछ- judged by guest lecturers. मतलब अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. वी वॉन्ट टू एंगेज विद पीपल, वही है हमारा गोल. वी वॉन्ट टू एंगेज विद पीपल, एंड इट्स नॉट लाइक वी जस्ट वॉन्ट टू एंगेज विद पीपल हु एग्री विद अस. वो भी नहीं है. वी वॉन्ट काउंटरिंग yeah, ओपिनियंस yeah. एज वेल. The primary reason why we do this podcast is because when you don't like something, like sometimes people say कि अरे मूवी छप रही है, जैसे कि पुष्पा 2 को बोला था मूवी छप रही है, सालार को बोला था मूवी छप रही है, and when you ask why you didn't like it, nobody is able to answer it exactly. वो बोलेंगे अरे इसमें स्टंट बेकार था, अरे इसमें अनरियलिस्टिक एक्शन था. मैंने कहा तो ठीक है ना, क्या मेरी जंग वन मैन आर्मी घर पे बैठ के देखी थी, उसमें बड़ा रियलिस्टिक एक्शन था, कल्ट बनी पड़ी है वो मूवी. डॉन नंबर 1, उसमें इतने क्या अलग ही लेवल के डायलॉग्स है, कल्ट बनी पड़ी है मूवी. अपरिचित मूवी ले ले, बिकॉज वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट गेम चेंजर टुडे. द सेम डायरेक्टर हु मेड गेम चेंजर मेड अपरिचित. उसमें तो बड़ा रियलिस्टिक एक्शन चल रहा है, बट मूवी है ना, एंजॉयबल है ना, उसमें मजा आया ना. वाई like this is what we want, this is the conversation which we want to talk about, that मूवी रिव्यूज शुड नॉट बी अबाउट एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट. नहीं हो सकता कि अरे मूवी बेकार है बिकॉज इसमें ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अरे मूवी बकवास है. नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि मूवी बकवास का मतलब देर आर अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ मूवी. हमको मार्को अच्छी नहीं लगी थी, बट हमने कभी ये नहीं बोला मूवी बेकार है. हमने बोला हमें मार्को अच्छी नहीं लगी, एंड हमने उसमें बताया कि हमें क्या क्या चीजें वर्क नहीं करी. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट दीस थिंग्स आर नॉट वर्किंग. That statement outrightly saying movie बेकार है is something I just am not built to say, because we understand कि एक फिल्म बनाना is like बहुत मुश्किल काम है. Okay, Exactly. just to go through that, imagine like कि गोवा का ट्रिप बनाने में कितना लफड़ा होता है. Okay, and now imagine शंकर shooting that song, getting all the extras. Okay, वो एडी को बोलना कि भाई सब जूनियर आर्टिस्ट को लेके आओ, इतना सब कॉस्ट्यूम्स बनाना, एवरीथिंग, एंड एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स. ओके, वो और भी बहुत मुश्किल है. कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सेट पे. एंड सिंस यू मेंशन्ड एक्स्ट्रास, अपने जो एक्स्ट्रा वाला रील था जो हमने मार्को में डाला था, उसमें लोग आके हमको वही चीज हमको बोल रहे कि तुम्हें पता है मूवी बनाना कितना मुश्किल है. मैंने कहा भाई पता है मूवी बनाना मुश्किल है, बट वी आर पॉइंटिंग आउट दैट फ्लॉ बिकॉज इट इज अ फ्लॉ. वी आर नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्लॉ द मूवी इज बैड. नो, इट्स अ फ्लॉ. वी आर पॉइंटिंग इट आउट सो दैट if the makers end up watching it, they take that criticism and make sure they don't replicate that mistake again, because we want the things to improve. अगर तुम कुछ क्रिटिसाइज ही नहीं It's the करोगे same, तो right? improve कैसे Like, करोगे? when we are watching a cricket match, right? We are pointing out कि इस टाइम पे ये शॉट लेना चाहिए था, और whatever, right? Like, पर उसको पता है. We just pointing it out. Okay, we just want our voices to be heard. No, we want, Whether it be a positive or negative criticism. if you outright come and say कि अरे मूवी बेकार थी, back it up. क्यों बेकार थी? एंड ये मत बोलो कि बस मूवी बेकार है मत देखो किसी और को. नहीं भाई, मूवी तेरे को अच्छी नहीं लगी, क्या पता कोई और बंदे को जाके अच्छी लग जाए. यूजुअली रिव्यू के नाम पे मैं हमेशा देखता हूँ हर कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. अरे इसमें ये स्टोरी ये था, इसमें वो बेकार था, इसमें ये बेकार था. भाई ठीक है, स्टोरी बेकार हो सकती है. Talk about the performances, talk about the cinematography, talk about other aspects of the film. If you don't like the story, move past it. Segueing from that to today's movie, Game Changer. Game changer. It is not a game changer, basically. एंड बार बार वो रामचरण आके बोलता है ना, आई एम अनप्रिडिक्टेबल. एंड सॉरी टू से राम, एंड सॉरी टू से शंकर सर, वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर अर्लियर वर्क्स, बट इट वाज नॉट अनप्रिडिक्टेबल. इट वाज सो प्रेडिक्टेबल. I was surprised they didn't call the film unpredictable instead of game changer. अनप्रेडिक्टेबल और भी होते.
आई डोंट थिंक अनप्रिडिक्टेबल भी अच्छा होता. मैं तो कहता हूँ चुम्मा मिनिस्टर डाल देते. दैट वुड हैव बीन अ बेटर टाइटल. चुम्मा मिनिस्टर. could also be like all mishmash of Shankar's films. That is the main That problem. could I also have. be a great title. That is the main problem. No, नहीं वो तो चल ट्रोल हो गया, बट मेरे हिसाब से अरे चुम्मा मिनिस्टर could have been a good title because चुम्मा मिनिस्टर is something which comes back again and again. It is something which is inherently tied to the main antagonist's कैरेक्टर कि उसको उसी चीज से तो प्रॉब्लम है. उसका वही तो गोल है. दैट इज द गोल. हिज एंटायर लाइफ्स गोल हैज बीन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर. और ये आया, ये बंदा आके इसका पूरा वो छीन लेता है, एंड देन ही कॉल्स इट चुम्मा मिनिस्टर टू रब पुट सॉल्ट ऑन द वुंड्स. So that is why Chumma Minister would have been a good title and it would have been a very interesting title. Game Changer सुन के ना मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, it did not. I mean, it would have been a cool title if maybe there was some relevance to like कि कुछ तो भी बंदा आके disrupt कर रहा है हर कुछ नहीं जगह. किया, कुछ नहीं किया. But I didn't feel that. Yeah. Let's segue इधर से. We'll talk about our overall thoughts. Before I get into it, I want you to first give your overall thoughts because compared to you, I have a lot more experience with Shankar's movies. I think you have seen most of the Shankar films. I've seen both Robos. I've seen Shivaji the Boss. Aparichit I've not seen completely. You've seen Nayak. I've seen Nayak. Nayak is going to be brought up a lot, I think. And Shivaji the Boss. Shivaji the Boss. That's it. Nothing else. You also seen I. Oh yeah, I forgot. You've seen I've I. seen I. People kind of forget I. I'll start my overall thoughts because you said I. I think Shankar always, for me, was somebody who, even if he falls short of executing the idea he had, there was an idea. Okay, so I felt I was not feeling that till the first half ended. I was like, ये तो देखा है, बहुत देखा है मैंने. ठीक है, I've seen this a lot of times. This is a rehash of so many other films, some from Shankar, some from Rajamouli, some from other South cinema. I've seen all of this. Okay, as soon as the second half starts, I was like, okay, fine. I now see कि शंकर कहाँ है इसमें. Okay, I see कि शंकर ने क्या try किया है करने का. But again, like a lot of Shankar's films that I've seen, the execution it falls short for me. Again, and there are a lot of reasons for that, which we will get into. But there are a lot of good things as well that I liked. We will do a separate thing, but one of the biggest positives for me is Ram Charan. Ram Charan gave an earnest, hard-working performance. I could see that he was putting in the effort. The kind of effort that guy put for RRR, the same kind of effort was put to this movie. And that guy, yes. Dude, he's so, I mean, भाई उसको जो बोला करा है उस बंदे ने. Yeah. He did it. Even the dance, like the choreography, he was he was earnest. Earnest is the word I will use because a person like Ram Charan would know after reading the script that ठीक है, इतना वो नहीं है, but I will give my best. Okay. And also, for an actor to come out and do that. Credits. Yeah, and also the reason I'll tell you, Shankar, bro. It's Shankar. Is Shankar, yes. People, the younger generation may not know who Shankar is because in these past 10 years he hasn't had the same kind of graph which he had in the early 2000s and from 90s basically. But Shankar was Rajamouli before Rajamouli. During 2010-2011 it was like, अरे Shankar movie है तो आँख बंद करके जाओ, it will be a guaranteed blockbuster. So that was the impact of Shankar. Cultural impact था एक. Like everyone wanted to work with Shankar. So that is why, coming back to Ram Charan, I understand why even Ram Charan might have agreed to do this movie because it was Shankar. And so अगर स्क्रिप्ट भी देखी होगी ना तो स्क्रिप्ट देख के लगाओगे ठीक है ऑर्डिनरी है, बट अगर इसको इफ शंकर इज डूइंग दिस मूवी देन इट माइट बी समथिंग स्पेशल करके उस फेथ में आई थिंक ही माइट हैव एग्रीड टू डू दिस मूवी. बट या ओके, continue. The familiar elements are there. Familiar Shankar elements are there. Some have over the time gotten annoying. Surface level commentary on every issue. Yeah. कितना तुम पैक कर, I can see where Atlee comes from.
क्लियर इन्फ्लुएंस मुझे दिखता है, एटली भी वही कर रहा है. हाँ, एक एक चीज़ पे फोकस करो यार. वेटेयन में आई सेड द सेम थिंग, फोकस ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपरली करो यार उस चीज़ ये को. तो वेटेयन में 10 गुना, ये तो 10 गुना कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है यार. ओके, एंड that is one of the biggest flaws here, is that the conflicts, while they are introduced, they are forgotten. There is no consistency to the conflicts. Okay, so we'll get to that as well. I felt for the first time that Shankar has gotten lazy, because a lot of ideas were just taken completely from some of his other films. Scenes were taken from his other films. So I was like, maybe he wasn't into it, or maybe he wasn't feeling it, or कोई घोस्ट राइटर से लिखवा दिया उसने. I don't know what is happening, but this was, I didn't feel. हाँ, actually one of the notes I made was कि this feels like Shankar has written कि watch all the films of Shankar, and then ChatGPT को बोल दिया कि एक फिल्म निकाल दो उसमें से, निकाल दिया उसने से, निकाल दिया. वही हुआ इसमें. It even has the exact same Nayak scene where Anil Kapoor is just sort of smothering into the navel of Rani Mukherjee, and this also has the same scene where the politician is doing that to like. Why do you remember that of all things, dude? I told you, मैंने नायक इतनी बार देखी है ना कि I now know कि शंकर क्या कर रहा है. ठीक है. I don't even remember that. ये भगवान. Because I remember that distinctly because of Anil Kapoor's expressions. He's like this. It's like this is beyond fetish. कि fetish से आप थोड़ा creepy हो रहे हो. ठीक है. When I watched that scene ना, when I watched that scene, I was like, यार ऑलरेडी साउथ इंडियन स्पेशली तेलुगु सिनेमा को इतना बदनाम करके रखा है कि दे हैव अ नेवल फेटिश. तुम उसी को तुम रीइंफोर्स कर रहे हो, उसी स्टीरियोटाइप को तुम रीइंफोर्स कर रहे हो. क्यों? बिकॉज इन दिस मूवी द विमेन वर नॉट ट्रीटेड एज हॉरिबली एज मे बी सम ऑफ द अदर तेलुगु फिल्म्स. ब्लेटेंटली जैसे कि चुट्टमले नहीं करवाया कियारा एडवाणी से, उससे धोप करवाया. वो तो बस उसी के लिए थी, वो धोप करने आई हुई है. एक सीन के लिए सुकुमार भी करवा लिया उससे. सुकुमार कौन सा करवा? ये उसका दिस फॉल्स कब होता है? ओ दे आर प्रिपेयरिंग द बेड फॉर द. अच्छा हाँ, अरे सुकुमार करवा दिया. आई वाज लाइक ओह सुकुमार इन्फ्लुएंस. सुकुमार इन्फ्लुएंस. या ओ हाँ गाने से पहले. I guess, yeah, okay, of course. Then yeah, again, the stereotype. Again, reinforcing that stereotype. It's like, dude, I don't expect that from you. I mean, not now, not in this stage of your career. It feels like maybe Shankar might have done something like this back in the day, but not now. Yeah. I'll wrap up my overall thoughts by just saying this, that whenever we are discussing that Telugu cinema is doing something new, okay, this film particularly does not really try doing anything new for me. It tried. It didn't even try for me. It sort of had a strong emotional core somewhere inside. But then इतना सब होता है ना फिल्म में that you sort of forget about it, or you don't feel the attention span just goes, emotion span also goes. So I don't want this to happen. Okay, like I can take Pushpa, I can take Salar, because while all these things exist, they are trying something new. Here all these things are like 90% of the film. तूने ये बोल दिया ना पुष्पा इज ट्राइंग समथिंग न्यू, इसी में लोग गाली देने आएंगे. पुष्पा क्या कर रही है? नहीं, उसमें भी तो कुछ नहीं हो रहा. समझाएंगे. Wait for it. We'll explain exactly why Pushpa works and this movie doesn't work. We'll just put a pin on it. एक time. अच्छा हाँ, before, by the way, we move forward before you, sorry to interrupt. Like we always break our podcast down into chapters. और वो जो चैप्टर्स है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू गाइस ऑल्सो टू फॉलो. बिकॉज क्या हो रहा है ना, यूट्यूब इज ऑल्सो मेसिंग अप. यूट्यूब भी बार बार ही कुछ ऐसा इशू क्रिएट कर देता है कि हमारा कुछ तो वो बैक एंड पे कुछ कर रहा है. इससे क्या हो रहा है कि हमारे एडवांस फीचर्स बार बार ही जा रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपना वो चैप्टर्स जो है ना वो हट जा रहा है, एपिसोड में से हट जा रहा है. बट द टाइम स्टैम्पिंग इज स्टिल प्रोवाइडेड बिलो. सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हम कमेंट में भी पिन कर देंगे. सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखना हो, आगे पीछे देखना हो, सो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैट. अदरवाइज इफ यू वांट टू वॉच द फुल एपिसोड, वॉच द फुल एपिसोड. आइदर वे इट इज अप टू योर कन्वीनियंस. हम वैसा बना के दे रहे हैं, सो डू दैट. सो या रैप इट अप. Yeah, so that is what I said कि
all those tropes, all those familiar aspects of Telugu cinema, that is like 90% of the film for me. The 10% was for me interesting, but I feel like Shankar should have explored more of that. But I think they played it very safe, very safe. Okay, that is a problem, because when you go for like a Shankar film, you like, there will be Something. some risks that he will take, right? Like they go far. Like for example, in Entiran, so that scene where he's rescuing that girl, right? Oh. Shankar has gone to a length. He's taken a Yeah. risk, Yeah. an ethical risk, to talk about certain features of, okay, this might be a problem with AI, this might be a problem with intelligence, it might be a problem with robots in general, right? That sort of a risk is never taken here, is what I'm saying. Yeah. Okay, but I feel like there are some characters, like for example, when I said in that reel, that reel में ही हो गया, pod पे तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, but when I wanted you to test characters, he has tried that here. He has tried testing characters. It's just the same thing. Consistency नहीं है conflict में. Okay, and I'll explain when we get to that part कि क्या होता है ये. Yeah, but that's it. That's pretty much what Okay. Since you talked about that one scene from Endiran, I wouldn't give Shankar the full credit for that, because he used to work with a writer. There was a writer named Sujata, and he is one of the he was one of the most prolific book writers. Okay. So he has written amazing books, and he has written, I mean, he is a knowledgeable, he was बार is बोल रहा हूँ, he's no more, by the way. So like Shankar used to work with him, and he has been associated with him since the start of his career. So which is why now, after we've seen Shankar's work after the passing of Sujata, we are seeing the downgrade, that okay, maybe what the emotional core, or maybe the hook, the primary hook which we as an audience were able to connect with, was because of the writer's contribution. And this is a very good way to summarize an entire what we always iterate in every single podcast, कि भाई एक इमोशनल कोर जब तक नहीं होगा, ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी. एंड आई विल अपेंड दैट स्टेटमेंट कि वो इमोशनल कोर एक अच्छा राइटर ही ला सकता है. तुम जितना पैसा खर्चना है खर्चो. 75 करोड़ सॉन्ग्स में लग गए, बाय द वे मैंने देखा इस मूवी के 75 करोड़ दे स्पेंड टू शूट द सॉन्ग्स. तुम लगाओ, तुम 1000 करोड़ लगाओ, 2000 करोड़ लगाओ, अगर वो इमोशनल कनेक्ट और इमोशनल कोर नहीं होगा ना मूवी में, मूवी फ्लैट जाएगी. और इस मूवी की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू एज एन ऑडियंस आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ एनी वन पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर. Shivaji the Boss may be, they've explored a lot of things. Still, Shivaji the Boss works because we as an audience connect with Shivaji. The first half entirely is spent building a rapport with the character of Shivaji. Yes, of course, it is a glorified Rajnikant film, but the character of Shivaji is very different from Rajnikant. You can separate the two characters. We see the character struggle. We see the character constantly face hardships. उसका inner सोच, उस जो तू बार बार ही बोलता है ना, वो inner struggle, उसका challenge. शिवाजी का क्या inner struggle है? I don't recall the film that well, but I feel like the inner flaw that I felt like he had was that he was very naive in how he approached people. From, if you go and watch Shivaji the Boss and you come back and watch Game Changer, it's all black and white. Shankar's morals are very black and white. हाँ, that is true. That is where Pushpa also works, because Pushpa out and out grey है. ठीक है, especially Pushpa 2, out and out grey, was never really in support of the character 100%. ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है बंदा. कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है विद हिज फैमिली, विद हिज वाइफ एंड विद हिज फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से ही स्कर्ट्स द लॉ एंड इंसल्ट्स द लॉ, एंड इनफैक्ट ही इज अ गुंडा, ही इज अ मवाली. Yeah, the only point where I felt like Ramcharan
showed shades of grey, I think you will agree, is that when he said ki this woman has a mental issue, right? And it's like, oh, you're capable of that. मैंने देखा नहीं है पहले ये तुम्हारा ये. शिवाजी द बॉस में उसका जो कैरेक्टर है ही गेट्स टेस्टेड इन द फर्स्ट हाफ एंड उसका टेस्ट यही होता है कि ही वांट्स टू डू समथिंग द राइट वे एंड द सोसाइटी एंड द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट लेटिंग हिम टू, सो द ओनली वे ही हैज टू डू इज कॉम्प्रोमाइज एंड ही कीप्स कॉम्प्रोमाइजिंग एक एक स्टेप से वो कॉम्प्रोमाइज करता है एंड वी आर फॉलोइंग हिम हिज जर्नी एंड एज ही स्ट्रगलिंग वी आर कनेक्टिंग विथ हिम. Even if that movie was not done by Rajnikant, as in a script level, it may have worked. Imagine if Shivaji the Boss did not exist and that same story was done by Ram Charan. Abhi, it would have worked. Yeah. So I can also imagine Ram Charan and then da 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 da. Oh, BGM भी बहुत खराब था इसमें. We'll get to it. वो मोमेंट्स थे ना, उसी टाइप का तो मोमेंट्स था हेलीकॉप्टर, और उसी टाइप का जिस तरीके से वो कर रहा है, उसका एक क्वर्क है और उसका भी एक साइड किक कैरेक्टर है. हो बाय द वे, डू यू रिकॉग्नाइज दैट साइड किक? सुनील. हाँ सुनील, ही वाज पुष्पा फ्रॉम पुष्पा. भाई वो इतना वर्सेटाइल आदमी है, उसको क्या क्या करवा सकते हो तुम कि एक मत you believe when he does something like Mangalam Sinu, to you can believe it, you can believe he is an antagonist, and then when he does something like this, हाँ यही तो उसका स्टार्ट, मतलब he was a comedian basically, he used to be a comedian हमेशा से ही, then he branched out to playing antagonistic roles. He's the testimonial characterization guy a lot of the times. आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया. It's like remember Paresh Rawal in Nayak, he was doing that और पहली बॉल में सिक्सर. I'm like okay fine, I see what you're doing. That is a Shankar trope basically, that is always a Shankar trope कि एक साइड के कैरेक्टर हमेशा होना चाहिए. So इस मूवी में ये इसका साइड के कैरेक्टर था. हाँ तो बेसिकली वही लिटरली अ साइड के साइड. ओ भाई साहब, शंकर ज्यादा हो रहा है, क्या बोलूं मैं. शंकर वाज लाइक आई विल बी वेरी मेटा नाउ विद द साइड कैरेक्टर. ही इज द साइड कैरेक्टर. हे भगवान. या लेट्स टेक अनदर मूवी, शंकर मूवी नायक. नायक में क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है? नायक में उसका कैरेक्टराइजेशन यही है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम नायक में ही इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. स्टार्टिंग से ही उसका यही होता है कि वो उसके जो डैड होते हैं ना, उसके डैड ऐसे कार्टून बना रहे होते हैं एंड देयर इज अ सीन वेयर वो बोलते हैं कि अरे भैया क्या आपने, मतलब वो आज पिताजी आपने क्या बनाया, तो वो उसके पापा वही बोलते हैं कि अरे पता नहीं बेटा आज मेरा मन है कि मैं फोरशैडोइंग करूं थोड़ी. तो बट see, that is good foreshadowing, that establishes the character, that establishes what Shivaji Rao, उसमें भी उसका नाम शिवाजी राव होता है by the way, शिवाजी राव. So there are two Shivajis. So उसमें उसका कैरेक्टर वही है, he outright comes and says कि अरे पिताजी आप क्या कर रहे हो, ये तो मुझे करना ही नहीं है, ये तो इसमें तो मुझे जाना ही नहीं है करके उसको फाड़ देता है वो. that is dramatic irony. यहाँ पे remember in Game Changer when finally after the interval point he gets appointed as the CM and वो गया है बात करने and वो पोडियम में खड़ा होके वो बोल रहा है ना कि मुझे तो कभी इन सब चीज़ों में आना ही नहीं था. मैंने कहा ये चीज़ पहले एस्टैब्लिश कहाँ की तुमने? You are just saying it, but we never saw it. In Nayak, we saw that one scene where Shivaji वो ना conflict है पर consistency नहीं है conflict में. हाँ, is what I said. After seeing the first half, what is the character of Ram? I think okay when we go to the flashback of flashback छोड़ Kiara's flashback, I for a second thought that this character's internal flaw is going to be controlling anger. हाँ okay, मेरे को लगा था ये होगी फिल्म that he has no control over his anger and then end में जाके he will get it, but then there will be a proper arc जहाँ पे we'll see consistency in that conflict. We don't see that anger thing is a setup and payoff. भाई वो छोड़, तू एंगर थिंग का क्या है, फ्लैशबैक में ही वो एंगर थिंग आता है जो तेरा जब व्हेन रामचरण इज इंट्रोड्यूस टू अस इन द फर्स्ट हाफ, पहले जब वो ट्रेन, ओ बाय द वे शंकर हैज अ ट्रेन फेटिश. इन एवरी मूवी ट्रेन हैज टू बी देयर. एक पोर्शन तो ट्रेन में आना ही आना है. कुछ भी मूवी उठा ले शंकर की, ट्रेन तो आएगी.
आई डोंट रिमेंबर 2.0 में है कि नहीं, बट हर बाकी मूवी में तो ट्रेन है. नायक में रिमेंबर देयर इज एन एम्बुलेंस सीन जहाँ पे दे आर टेकिंग समबडी इन एन एम्बुलेंस एंड देन ट्रैफिक हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, दे आर नॉट एबल. ये इसमें भी सेम ही है. तो वो तो सेम है चीज ही, कर रहा है बार वो बार. तो है ही नहीं, बट इन नायक दैट वर्क्स. Of course it works, yeah. That's a much better scene It's because a story beat. there is an irony in that one particular beat कि जो it starts with a student protest. It starts with an altercation between a student and a conductor, bus conductor. Yes, और yes. उन दोनों की लड़ाई में ये पूरा दंगा शुरू हो जाता है. And the irony which that entire scene is set up is that कि जो पहला बंदा था जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई, वो स्टूडेंट लेटा हुआ है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा. तेरा शिवाजी राव होता है जो स्टूडेंट को उठा के भाग रहा होता है. There is an arc to that scene proper. So that is what is called having a writer's touch. यहाँ पे वो जो they tried something like that but it comes out verbally. इसमें क्या होता है कि तेरा जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टक है एंड वो ट्रैफिक में स्टक हो गया बिकॉज देर इज एन एक्सीडेंट, एक बहुत बड़ा जैम हो गया, उसको पूरा उठा के हाथों में लेके उठा के जा रहे हैं. एंड द रैंडम पासर्स बाय आर पासिंग दिस डायलॉग कि अरे हम कितना फंसे थे तो अभी आज फंस रहे भुगतने. तो मैंने कहा भाई आई अंडरस्टैंड बट हमें देखना होता है वो. दिस इज समथिंग विच आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम शंकर. दिस इज समथिंग विच आई मे एक्सपेक्ट फ्रॉम एटली. पूरी मूवी में यही प्रॉब्लम है. नाउ कमिंग टू वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट, लाइक रामचरण का कैरेक्टर छोड़ दे, what do you think is the one liner for this movie? One unique aspect of this movie जिसको सुन के एक्टर ने और प्रोड्यूसर ने इसको ग्रीन लाइट किया. This is about a character who is sort of carrying out his father's ideology that was left sort of unfulfilled through political means. I think that is how I would describe it. ठीक है. I'll tell you what I felt is the one-liner which may have greenlit this entire project. This is a commentary on corruption. If you are corrupt, it will completely ruin everything. भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, दोस्त के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. If you let money and power and authority control you, you will lose your humanity. That is the idea which Shankar wanted to convey through this movie. This story is about an aging CM who is rotting from the inside because of how he grabbed power, and he is tormented by the fact that he had to unalive two people to grab hold of power, and that act of corruption has stemmed into this entire corrupt ruling government which is ruining the nation, ruining the people and causing him inner turmoil. How does the movie start? वो उसका character is very important. He's having a nightmare about that woman वो जो faceless woman and a child, and that is eating him from inside. And there is a literal dialogue which supports this theory when the father Ramcharan, when ये जो character होता है वो father Ramcharan को मारने वाला होता है ना, वो चाकू निकालता है, that character Ramcharan का character, he says a line, वो बोलता है कि यार ये कैसी पॉलिटिक्स है, मैंने पहले ही बोला था इसमें मत जाओ, ये कैसी पॉलिटिक्स है, अपने मेरे प्यारे दोस्त को मेरे अगेंस्ट तुमने टर्न करा दिया, मेरा जो अभिमान वाला था, जो मेरा फैन था, उसको मेरे हाथ के अगेंस्ट चाकू उठवा दिया, रहने दो, इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं. दिस इज वॉट ही वॉन्टेड टू से. दिस इज द स्टोरी. This is the one liner which would have been given to the producers, and this is the idea which would have been sold to the producer, because this is the only unique thing which I say that. And होता क्या है, जो तेरा प्राइमरी एंटागनिस्ट है, जो सीएम बनना चाहता है, वो कौन होता है? वो उसके फ्रेंड का बेटा होता है. ही इज नॉट इवन दिस गाइज सन. The corruption has actually corrupted these two यंग किड्स. इसको बचपन से इसने अडॉप्ट करके इतना पॉइजन घुसा के ऐसा करप्ट किया दैट ही इज सो, वो देख नहीं रहा, वो तो अपने अडॉप्टिव फादर को उसने खत्म कर दिया, एंड जो भाई है वो भाई इसको मारने के चक्कर में. सो दैट इज द कॉमेंट्री विच ही वांटेड टू से, एंड दैट इज द ओनली यूनिक थिंग विच आई सॉ. बट द प्रॉब्लम इज इट गेट्स लॉस्ट. क्योंकि ये एक कोर आइडिया है.
which is an interesting idea, that the bad guy is having the conscience. It is presented through his lens. We are seeing that an aging CM, he wants to right his wrongs. वो हॉस्पिटल से आके सबसे पहले क्या अनाउंसमेंट करता है वो सीएम, आके बोलता है कि अब से कोई पैसा नहीं खाएगा, अब से कोई कुछ नहीं करेगा, अब से कोई करप्शन मैं होने नहीं दूंगा, जनता की भलाई के लिए करो, 1 साल के लिए मैं सीएम हूँ, ये 1 साल तुमको भलाई करना है. बट ही इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग अपोज्ड, ही इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिडिक्यूल्ड. फिर फाइनली क्या होता है, इंटरवल पॉइंट में जब उसकी माँ आती है, भाई हाथ जोड़ लेता है वो, क्योंकि उसको दिख गया. एंड देन वो बोलती भी है ना कि कितना पिटीशन मैंने लिखा, हुआ ये करके. फिर वो पूछता है उससे कि ये सब सच है कि नहीं, बिकॉज ही फील्स इन हिज डेथ बेड, ही रियलाइजेस his entire life that the means he used to grab hold of power, it is meaningless. And he now wants to change. He's regretting, he's repenting. It is a strong story. जो story बताना चाह रहे थे, it is a very good story. But the problem is the execution is terrible. Yeah. क्योंकि इकलौता मेरे को वही एक कैरेक्टर था जिसके साथ मुझे कनेक्टिविटी हुई थी. जो तो तेरा जो वो जो सीएम है, जो तेरा बड़ा सीएम होता है, जो तेरा बुड्ढा सीएम होता है. And they should have focused on this story. That okay, the way he kind of first half में, if you had shown me that flashback, okay, I would go into the second half cheering more कि I was expecting a lot more. ठीक है, second half में when you introduce, second half में starting से ही we see that flashback, right? Because what you lose is Ramcharan's character's connection to his father. Those are completely lost there. Okay, we don't feel that Bahubali thing here. Exactly, which is what did not work in Devara, जब वो पुलिस वाले को सुना रहा होता है. Here I felt the same. It did work. That emotional connect did not work. That emotional connect did not work because वो flashback actually में देखा जाए तो उसमें भी वही problem है कि another interesting idea that a particular leader, जो community leader है, he is being loved by the community, he was one among the community, but the problem is when it comes to public speaking, he is not good because he has a disability. स्पीच इम्पेडिमेंट है, स्पीच इम्पेडिमेंट, स्टैमर करता है. हाँ तो स्टैमर करता है ना. एंड इट इज अ वेरी गुड कॉन्फ्लिक्ट. It is, yes. But it is not explored properly because the movie does not have the time to explore that. Look at how much they achieved in that flashback. So much. Even that relationship between the Ramcharan's father and his wife, even that, because she tries to cure it. It is a good all the efforts she has put in, and then when she feels that she has failed, he comes and like sort of says, fine, we'll find a solution to it. All of that, I connected with that. That is a strong emotional core. But the thing, वो है emotional core, but the thing is I saw it a mile away. वो speaker बन गया तो मैं समझ गया, हाँ ऐसे इसने पार्टी को टेक ओवर किया. You know, structurally this movie might have worked if this movie began with the flashback. Yeah. This should have been the prologue, then cut instead of that Kiara flashback, cut that completely. हाँ, just put it over there, वहाँ पे डाल दो. We don't need to see that entire flashback जिसमें वो जाके मार रहा है, and that silly anger meter and वो love meter, so bad. It was so bad that you are literally spoon feeding the audience बोल के कि ओ अभी इसको प्यार हो रहा है. It is like it is Kangua. Just a small thing here. If Shankar is listening, please stop writing young characters. You don't understand them. Okay, किसी को हायर कर लो. ठीक है, जब भी तुम कॉलेज में घुसते हो ना, ये तुम यंग लोग दिखाते हो. Wait. Please don't write young characters set in the contemporary times. If you want to write young characters, write about them in the previous era. अपने टाइम पर चले जाओ. चले जाओ, because Gen Z millennials तुमको नहीं समझ में आते. Millennials नहीं समझ आएंगे. Gen Z, मेरे को भी Gen Z समझ में नहीं आता है. Gen Z हमें भी नहीं आता है. हाँ, तो मैं तो लिखता ही नहीं हूँ ये सब. फॉर सम रीजन शंकर को बहुत मजा आती है, उसने रोबो 2 में भी डाल रखे थे, एंड इट वाज द सेम प्रॉब्लम. कियारा इज कबीर सिंह वाली कियारा इन दिस फिल्म आल्सो. सेम टू सेम कैरेक्टर. मैंने कहा मेरे को लग रहा शंकर ने कबीर सिंह देखी होगी, बोलेगा ओ ये क्यूट है, इसको उठा के डाल दो उधर ही. This is how I would structure it. I would still begin with that dream. Okay, which is a good scene, right? I would begin with that dream. I would set up
his character, I would set up the son. I would then not wait for the interval to come. Right. I would just say कि ये जो CM बंदा है ना, he has seen Ramcharan and he tells Ramcharan, this is why I'm making you CM. This is what your father deathbed पे है वो. Deathbed पे वो सुना रहा है. हाँ. Okay, flashback में. So Ramcharan is also listening carefully कि हाँ okay ये हुआ था ये हुआ था ये होता, and he's emotionally connecting and we are also emotionally connecting. Right. Maybe you have not seen the mother yet, और वो देवसेना टाइप कुछ कर देंगे. ये देवसेना वाला नहीं जा रहा है यार. she has that देवसेना vibe. वही तो है, वही सेम है ये. Yeah, that is how I would have structured it. It's because that opening scene is really good. एंड जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई पहले 15-20 मिनट में कोर पे आ जाओ, दे आ गए थे पहले सीन से ही, वो कोर पे आ गए थे. दिस वाज द कोर, बट फिर वही है, चलेगा इधर उधर भटक गए. They wanted to set up the love story, which is there is no chemistry, there is nothing going on. Okay, see, when I say I see flashes of, oh, there is some writing here. ठीक है. So for example, I saw flash of writing जहाँ पे there is a character moment. And I will use a term here. Example. नहीं तू टर्म की बात कर रहा है ना. मार्को में कोड ऑफ कॉन्डक्ट बोल के तूने मस्त एकदम बजा दी थी. तभी देख चल क्या लेके आ रहा है अभी तू. हाँ, so anytime you have a character flaw, ठीक है. So for example, anger was one of the character flaws of Ramcharan's character, right? What you said is called a ghost. ठीक है. The ghost is why that character has that flaw. ठीक है. अरे भाई इंसानों को समझाने की तरह समझा. Like for example, the CM, his character flaw is guilt. कि वो गिल्ट में जी रहा है कि उसने जो किया उस टाइम पे. ठीक है. सो उसने जो किया ना, अनलाइव्ड रामचरण, वो फ्लैशबैक वाला रामचरण, दैट इज हिज घोस्ट, and that has led to the character flaw, the inner flaw, which is that guilt has become his motivation ना. ठीक है. रामचरण का flaw is anger in that flashback, but we don't see the origin, we don't see that ghost. Mopi Devi, in that one scene they set up the flaw is that he says कि पैसा वेस्ट नहीं करना है. ओके, एंड देन एंड में ही एक्चुअली बहुत वेस्ट करता है वो. टेकिंग फ्रॉम यू, मैं बताता हूँ कि वो मोमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब वो फाइनली जो उसका एस जे सूर्या का जो बाप होता है, वो उसको पहले बोलता है ना कि सारे काम बंद कर दो, और फिर वो सब मान लेते हैं, और फिर वो जाता है अपने उस इलीगल धंधे के बंदे के पास, और वहाँ पे जाके बैठा होता है. इट इज देयर इज अ पाइल ऑफ कैश लाइंग बिहाइंड, एंड वो क्या करता है, उसको उठा के बात करते करते पानी में फेंक रहा है ऐसे, एंड इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय दैट अंडरलिंग. मेरे को उसका नाम नहीं पता, वो कॉलेज वाला दोस्त होता है ना रामचरण का ही जो दोस्त होता है, वो ही इज आल्सो वन ऑफ द एंटागनिस्ट. दैट गोज टू शो कि हाँ ये बंदा, इसके पास इतना पैसा है कि ही कैन इजीली वेस्ट इट. देन कट बैक टू वो वाला कैरेक्टर बोलता है कि अरे भैया क्या 2 लाख रुपए ही तो है, दे दो. वो बोलता है इधर आ, तेरे को पता है पैसे का वैल्यू. तो दैट इज अ गुड कैरेक्टर मोमेंट, बिकॉज उसने लिटरली पिछले सीन में पानी से फेंक के पैसे बर्बाद किए थे, अभी वो उसको पैसे की वैल्यू समझा रहा है, वैल्यू सिखा रहा है. So that is a good characterization. This is an interesting character. They have the villain here is very interesting. I would say something controversial, more interesting than Ramcharan's character for me. Exactly. Yeah, it's not controversial. It is true. But उसका क्या है? More interesting. उसका भी एक flaw set हुआ है, और वो चीज ना वो flashback में भी set करते हैं कि remember वो जो दो बच्चे होते हैं, जब जो when this वो दोनों वही तो भाई होते हैं, उन दोनों को वो पैसे पकड़ाता है. That is what sets it up. Yes. It is a good moment, but the problem is वही है ना, ये सारी चीजें रजिस्टर ही नहीं हुई. इतना यार, इतने सालों से मूवी ब्रेक डाउन करके ना थक गए हैं, तो इसलिए ये चीजें ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाती हैं. बट एक जनरल मान ले, कोई थका आ रहा बंदा काम से पूरा सुबह से लेके शाम तक आईटी सेक्टर में जाके ये सब नोटिस करेगा क्या? बोलेगा कि भाई मेरे को स्टिमुलेट करो, उल्टा बोर करेगी ये मूवी. बिकॉज दे वॉन्ट बी इन द माइंड सेट टू नोटिस दीज थिंग्स. उनको लग रहा होगा ऊपर से लोग मूवीज देखते हैं यार, और ऊपर से देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर, नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग हियर. सेकंड हाफ तक वेट कर लो मे बी. नहीं, सेकंड हाफ में भी कहाँ इंटरेस्टिंग हो रहा है कुछ भी. वो जो इंटरवल पॉइंट है दैट इज इंटरेस्टिंग, बट उसके बाद भी सेकंड हाफ में कुछ नहीं हुआ. नहीं. हाँ, इफ यू वॉच दिस मूवी यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि डिटेल्स नहीं है इस मूवी में, डिटेलिंग है, काफ़ी चीज़ें इसमें करी हैं, बट यू विल बी बोर्ड, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है. प्लॉट इज वेरी प्रेडिक्टेबल. एवरी इमोशनल बीट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. You know when the mother says कि
when his mom says towards the end that I will take care of it, you पता know है कि हाँ, I mean it's a scene that the reveal is interesting, sure, okay, and Ramcharan's the dread on his face, he's acted it out really well कि he knows कि कुछ गड़बड़ हुई है, and then and when he and I appreciate the fact how they show it कि there are two, I mean this is called taking a very average material and showing it very interestingly, I mean very yeah differently and very impactfully. Ramcharan's character is coming to this acid factory and under the dread that maybe his mother has committed unalived herself by jumping into that pool, and how we see it, it is established visually that a pair of slippers is lying yeah. at the bottom of the Oh, staircase. it is not established there. The actual thing starts with Ramcharan holds her feet, and then the tear falls on her feet, and then that is where it starts, and it ends when he sees the footprint. वहाँ पे, that is where and it ends. and another moment is in the flashback, the older Ramcharan is also worshipping the feet because वो कोल पे चलती है उसके लिए. Hmm. So So again, there is a theme, I there is a theme you with the you can feet. see अंदर कहीं कहीं कुछ सीखा है, but इतना there इतना is सारा घुसा nothing दिया ना there अंदर. is nothing हाँ. which ties all of this together. There are so many moments which are functionally a movie. Wahi na, this is what I'm saying. As a director, Shankar is still the same Shankar which we had in Shivaji the Boss, which we had in Robot and Endiran and all of that. But the problem is there is no hook, there is no core which ties all of this together, which will enhance everything. वो चीज़ नहीं है इसमें. वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मूवी की. वरना अगर वो कोर, एक वो पकड़ के जो कोर है ना, वो कोर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया होता, दिस मूवी वुड हैव वर्कड. ए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे. आइदर द कोर, इफ यू वांटेड टू फोकस ऑन कियारा's कैरेक्टर, द कोर कुड बी कि ही इज ट्राइंग टू प्रूव टू हर कि ही कैन कंट्रोल हिज एंगर, एंड देन ही कैन बी अ गुड कलेक्टर. ठीक है, दैट कुड बी द Yeah. कोर. By the way, that entire episode with Kiara, her father, oh father को मारने वाला बहुत ही बढ़िया. मतलब कबीर सिंह की बता दो तुम. I wrote here that consequences are played off as laughs because हाँ, there is नहीं, a genuine so- consequence. He is sent to jail because of what he हाँ, does to the father. हाँ, But हाँ. वो हंस रहे हैं. ये जो पूरा इंटरेक्शन है ऑफ द फादर ऑफ द हीरोइन नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट द प्रोटैगनिस्ट, दैट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम नायक. Hmm. नायक में भी Yeah. तो वही होता है ना, वो बार बार ही हर पॉइंट में जो शिवाजी सतनम का कैरेक्टर है, दैट एक्टर्स नेम आई डोंट रिमेंबर द फादर्स नेम, सीआईडी एसीपी प्रद्युमन. सो दैट एक्टर, उसका वो जो पूरा कैरेक्टर है, दैट इज सच अ गुड कैरेक्टर. एट एवरी पॉइंट इन टाइम ही इज ओपोजिंग दिस गाय. सबसे पहले मना करता है क्योंकि वो बोलता है कि अरे सरकारी नौकरी नहीं है तुम्हारे पास. अनदर फोरशैडोइंग मोमेंट, फिर भाई सरकारी चलाने चले जाते हैं. जब उसको सरकारी नौकरी मिल गई, इज लाइक अब फिर छोड़ बोलता है दे. कि छोड़ दे भाई, सरकार छोड़ दे. फिर अनदर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए बट जो सरकार चला रहा है वो नहीं चाहिए. This is See, again a character moment which is tied to the overall theme. So this conflict is also established, and यही राइटर का टच होता है कि you have so many characters but it inherently ties to the overall theme. जैसे बोलता है ना कि सबके सब चोर हैं, सबके सब चोर ही हैं. ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी और ये जो बाप का जो एक वो प्रेजुडिस होता है ना कि अरे मतलब हमको सिक्योरिटी चाहिए बट हमको रिस्क नहीं चाहिए. ये दिस इज द टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड थ्रू दैट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर. दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शंकर. वी डोंट सी दैट. भाई वो बाप का कैरेक्टर 2 सीन में आता है, एक बारी मुक्का खाता है, अगले सीन में फिर से वो ड्रॉप करने आता है, फिर उसके बाद वी नेवर सी हिम इन द मूवी एवर अगेन. एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो जो साइड वाला जो कैरेक्टर था जिसको ऐसे साइड व्यूज में दिखाना है. I had a problem with that. I was like, okay, on one hand, you are showing that this character has sort of a problem, a physical problem, okay, and you're playing it off as laughs. वो जो साइड वाला चीज है वो तो उसकी माँ के साथ वही तो होता है. Yes, right. So The mother एक is चीज के- the mother is like is this doing this. because, and it is a very powerful tool कि she was so traumatized by that one particular moment, she completely looked away and in that moment she lost her child.
Yeah. and she got mentally challenged by that. So it is a very functionally it works functionally, but there is no, If you zoom out, you're confused because it एक is like, character के तुम you're making fun of him, हाँ and हाँ then second for character this जिसको same problem है, for the same quirk हाँ, for the same quirk you are now, oh this is very tragic, like नहीं होता थोड़ा वो, distaste है. मतलब मैं डिस्टेस्ट भी नहीं बोलूंगा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, मेरे को लग रहा है कि देयर इज नो, इट इज मियांडरिंग, इट इज लाइक समथिंग, हाँ बस कर दो का, अरे ये अच्छा है, हाँ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हमको कुछ नया करना है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग न्यू दे आर डूइंग इट. आई फील लाइक शंकर हैज सम बीट शीट ऑफ सीन्स, ठीक है, उसमें नीचे कहीं लिखा होता है व्हाट इज़ द फनी पार्ट अबाउट दिस सीन, क्योंकि हर सीन में कहीं ना कहीं इंजेक्ट किया गया है कि आई हैव टू ऐड समथिंग फनी टू द सीन. आई एम लाइक ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे. Okay, That थोड़ा one सा- by the way, that one scene with Brahmanandam, if you recognize Brahmanandam, that legendary comedy actor, वो जब 11 अडवाणी से Yes, मिलने आता है, वो बोलता है ना, yes. वो बॉर्डर वाला. You know what happened? That character showed up, and a couple of there were some guys here next to me. It was like, oh ये है. That's what they said. Oh, ये Everyone भी knows है. that. Cheering हुई थी भाई, cheering हुई थी, because he is so old now, he stopped doing full-fledged comedic roles now, because he's unable to do it. So he does these kind of one scene cameo appearances करता है, but it is like when he showed up on the screen, everyone was cheering, कि अरे भाई आ गए करके, and it is, we understand that there is a relevance to that, and we understand कि एक impact होता है. He's a legendary comedian, man. He's a legendary comedian in Telugu cinema. I remember कोई तो मीम है उस बंदे का. बहुत मीम्स है भाई, वो बंदा मीम हाँ. फॉडर है. ओके, सो द वन थिंग विच डिड नॉट basically we wanted to, we had put a pin on why we prefer Pushpa over this movie. Basically in Pushpa there is a character which we are following, and in Pushpa 2, I'm not talking about Pushpa 1. Pushpa 1 अलग चीज़ है. Pushpa 1 हमें वर्क नहीं करी थी by the way. जो जिनको भी लगता है ना हमें पुष्पा 1 पसंद है, नहीं पसंद है हमें, बिकॉज पुष्पा 1 ऑल्सो हैज द सेम प्रॉब्लम, इट डजेंट हैव अ वन पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. जैसे कि पुष्पा 1 में एक वो इनर कैरेक्टर स्ट्रगल है ना, कि उसका वो स्टेप फैमिली उसको रिजेक्ट कर रही है, विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन द सेकेंड मूवी. Yeah. Which is why it works for us, because there is an inherent flaw, inherent character want and need which is constantly defining what he is doing externally. That is why it works. तो सेकेंड मूवी हमें इसलिए पसंद है बिकॉज दैट इज द कोर. अनदर थिंग इज सेकेंड मूवी ऑल्सो वर्क्स बिकॉज वी वॉन्ट टू सी द राइवलरी बिटवीन शेखावत एंड तेरा पुष्पा. Yeah. वो थोड़ा वेस्ट हो गया था, नो डाउट, वो इतना अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, बट स्टिल पीपल गॉट इन टू द थिएटर्स बिकॉज ऑफ दैट. द फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट यू हैव, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं अपने, ओके, वो भी टाइड अप होती है कहीं ना कहीं इन योर कैरेक्टर्स फ्लॉ, इंटरनल फ्लॉ कहीं ना कहीं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल पुष्पा doesn't have a last name. I think we've talked about it. Pushpa doesn't have a last name, and Bhavar Singh Shekhawat, he's known by his last name only. People call him Shekhawat. ओके, सो यू वहाँ पे ही थीम एक आ गई है निकल के. यहाँ पे आई वॉज अगेन, देर वॉज अ सीन अगेन, वी इट्स नॉट एक्सप्लोर्ड, ठीक है, इट्स रामचरण टॉकिंग अबाउट कि मैं यहाँ पढ़ लिख के मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तू नेपो है, तेरे तो ऐसे ऐसे करके किसी ने तेरे को बना दिया पीएम, तू यहाँ. आई एम लाइक ओके, मे बी दिस इज द थिंग, बट नहीं, वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं है. मतलब क्या चल रहा है, कोई थीम तो बताओ मुझे क्या चल रहा है. वही प्रॉब्लम है यार, ये ना, इट वांटेड टू बी अ मिशमैश ऑफ एवरीथिंग, बट इट डिड नॉट हैव वन पर्टिकुलर देयर. सी यू, जैसे कि ये जो अपने प्रतीक भाई बोलते रहते हैं ना कि कितने सबप्लॉट्स हैं उसमें, कितने सबप्लॉट्स हैं इसमें, तू ले ले भाई, तू देख ले, इसमें सबप्लॉट ही सबप्लॉट है, सबप्लॉट ही है, प्लॉट ही नहीं है, नथिंग वर्क्स उसमें को. हाँ, there was a scene where I was like, okay, are they going there? Are they commenting on this? Because when Ramcharan and Kiara are about to kiss, literal culture बीच में आता है. कल्चर, हाँ, कल्चर. Okay, I'm like, तुम commentary कर रहे हो क्या इस चीज़ पे? I'm like, but then I'm like, तुम लोग कोई थीम तो है नहीं, क्या ही करोगे? यार, that is just Shankar playing with that visual gimmicks and you know, Yeah. that CGI. It has been played a lot. वो ऐसे दिखाते हैं ना इसमें कि अरे इसको डिसमिस करो, उसको उठा लेते हैं लिटरली. कितना हो रहा है वो कि इसको उठा लो. I was taken back to Chandni Chowk to China. In Shivaji the Boss there is that entire gimmick of office room. You remember that कभी भी उस, तो इधर वो गिमिक उन्होंने ट्राई किया विद द बस. Yeah. बट वो बस एक ही बार ही आता है और फिर उसके बाद वो भूल गए.
So it is a callback to that. शंकर वो रिहाश ही करता रहता है. आई टेल यू वन मोर थिंग. ओके, जस्ट लाइक नायक, अलग अलग जगह बॉम्ब लगा दिया है मैंने. ओके, हम लाइक क्या तू क्यों रिहाश कर रहा है? और फिर उसके बाद बोल रहा है, तेरे को फिर उसके बाद बोला है वो अप्रैल फूल, मैंने तो कोई बॉम्ब नहीं लगाया, फिर करके वो आके बोल रहा है. फिर उसके बाद बोल रहा है मैंने लगाया ना ले उंगली. बट दैट वाज अ गुड मोमेंट बाय द वे, आई लाइक दैट. वो ऐसे दिखाता ना ले उंगली, और फिर दिखाते सबकी उंगली सूजी हुई है. दैट वाज अ गुड, दैट इज अ गुड टच. दैट इज सैटायर, दैट बूथ रिगिंग एंड उस चीज के ऊपर उन लोगों ने एक प्लेफुली एक सैटायर उन लोगों ने दिखाया, जो एक कनेक्टिविटी. वन मोर थिंग वेयर आई थॉट दिस माइट बी द थिंग, वो भी नहीं था. ओके, वेयर ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन आईएएस ऑफिसर. ठीक है, कि मैं मेहनत करके पढ़ लिख के आता हूँ. एंड व्हेन ही गेट सस्पेंडेड आई वाज लाइक ओके, मे बी दिस इज द थीम, कि उसे पावर छीन ली गई है. एंड लेट्स सी हाउ, शिवाजी में यही होता है. ओके, सॉर्ट ऑफ पावर गेट्स टेकन अवे फ्रॉम हिम. नाउ इज अ कॉमन मैन एंड उसको अब ऊपर आना है वापस. अगेन इज लाइक सस्पेंशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट सीन में ही कियारा को बोलता है वो, सस्पेंशन तो मैं रिवोक करवा दूंगा. वो कहता है मैं रिवोक करवा दूंगा. और कैसे हुआ, वर्बली दिखा रहे हैं कि इतने सारे सब लोग आईएएस ने मिलके उसको पिटीशन कराया. और फिर वो एक लिटरली देयर इज अ टेस्टिमोनियल कैरेक्टराइजेशन व्हिच इज हैपनिंग. वो बोल रहा है कि अरे इसका रिकॉर्ड देखा है हमने, ये तो बहुत ही नेक इंसान है. ऐसा यूपी में एक के साथ हुआ था, एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखा रहे हैं. मैंने कहा हाँ, इन वेटेन क्या होता है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं पुलिस से. फिर हाउ डज ही कम बैक, दैट मोमेंट, दैट वन मोमेंट इज बहुत किस तरीके से वर्क करता है वो, कि ही इज सिटिंग इन द लॉबी विद अ स्टाइल मार के ऐसे बैठा है, लिफ्ट खुलती है एंड सीधा फोन निकाल के क्यों हिला डाला ना, वर्क्स. That is how you do that. That is how you do. I mean, ironic, he does the same. He uses the same dialogue from Shankar's movie, and Shankar himself is not has forgotten how to do that. Stories and emotions are timeless. Stereotypes and tropes, they are not. If you use a stereotype and trope from 20 years ago, you are dating yourself. If you take Shivaji the Boss and watch it now, you will connect with it. If you watch Aparichit now, you will connect with it. Yeah, okay. So let's get to songs. चल भाई, बोल, तू बोल, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ. Yeah, I'm just saying the again it's the same thing. Okay, that we talked about. The songs, they're very colorful, and then Shankar likes to experiment with choreography, and but there is nothing tying them up. Okay, कि ऐसा ही if you watch the songs separately, they feel like music videos. हाँ, what is the point? इस मूवी में it felt like the choreography was random. कुछ भी हो रहा है. Yes, that too, I will agree. Nowadays, what is the purpose of a song, a music video in any movie? What is the purpose? It's just to like look good and मार्केटिंग. हाँ वही कि मार्केटिंग एंड स्पेशली विथ द बूम ऑफ इंस्टाग्राम, द कोरियोग्राफी इज डन इन सच अ वे दैट द स्टेप्स आर वेरी सिंपल येट कैची. सो दैट वही हुक स्टेप, वो एक हुक स्टेप बना के पीपल कैन रिक्रिएट. एग्जैक्टली, तौबा तौबा. They can recreate it and then उसको बना दो, उसको एक रील बना के, then you promote the song, then you promote the movie. तौबा तौबा की वजह से बैड न्यूज़ की इतनी प्रमोशन हुई थी ना, इतनी प्रमोशन हुई थी. That is the entire purpose of a song. So ये जो है, इस मूवी में एक भी सॉन्ग उठा ले तो किसी को भी हुक स्टेप बना के कर सकता है? नहीं कर सकता. Because Shankar comes from an old school model of songs and music video. उस जमाने में ऐसा होता था कि द सॉन्ग का ऑडियो यूज्ड टू बी सोल्ड इन कैसेट्स एंड सीडीज. वो एक वर्टिकल होता था जिससे रेवेन्यू आता था. एंड द म्यूजिक वीडियो यूज्ड टू बी दैट कि जिसको सॉन्ग पसंद है वो थिएटर आके उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस दो विच यू नेवर सीन बिफोर. दैट इज वेयर शंकर कम्स फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू डूइंग दिस सॉन्ग, विच इज व्हाई ही टेक्स एक्स्ट्रा केयर टू मेक श्योर कि सॉन्ग ऑर्डिनरी ना लगे, कि हाँ इसको देख के लगे कि भाई ये शंकर का सॉन्ग है, शंकर की मूवी का सॉन्ग है. एंड ही इज बीन डूइंग दिस सिंस द 90s. उसके हर गाने में बहुत डिफरेंस, मतलब इट इज लाइक एवरीवन इन दैट एरा व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज एक सेट बना दिया, एक सेट में सारे बैकग्राउंड डांसेस डाल दिए, एक सेट कोरियोग्राफी कर दी और बस वो डांस छापते गए. दैट इज व्हाट एवरीवन यूज्ड टू डू. ओनली इन शंकर सॉन्ग्स दे यूज्ड टू हैव random sets, random नहीं बोलूंगा, they used to have extravagant sets
बहुत ही अनकन्वेंशनल सेट्स, अनकन्वेंशनल कोरियोग्राफी, अनकन्वेंशनल विजुअल्स, बहुत ज्यादा पैटर्न है जो कि थिएटर में अगर देख रहा है ना, कोई सॉन्ग आ रहा है तो उठ के ना जाए, इसलिए वो उस तरीके से करता था। आयरॉनिकली अब लोग उसी पॉइंट पे उठ के जा सकते हैं, बट स्टिल आई एंजॉयड द सॉन्ग्स हाउएवर दे स्पेंट द टाइम। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई एफर्ट मारा है, आई वॉज एंजॉइंग इट, इवन दो आई फेल्ट लाइक कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये सॉन्ग बस डाला है, थोपा गया है, बट मेरे लिए ये था कि ठीक है, आई कैन अप्रिशिएट वॉट देव डन एज अ म्यूजिक वीडियो, आई कैन अप्रिशिएट। In Pushpa 2, the songs were inherently tied to the story and character and everything. Even though the songs separately don't work, अलग से मैं वो नाटू गाना नाटू देख, also, yeah, नाटू नाटू is नाटू नाटू tied to it. Here, except for that one song where वो जो उसका speech impairment वाला हो रहा है, no other song is tied to it. The choreography is also done in such a way, because back in the day, back in the 80s and 90s, what used to happen was songs were used to showcase the performing capability of an actor, जिससे जिससे तुम दिखा सकते हो कि अरे ये बंदा कितना अच्छा नाच रहा है। Nowadays songs are not used for that. Nowadays songs are used to show the viewer that okay, you can do this and you can get famous. That is the purpose of songs have changed. Shankar did not get the memo, yeah. because Natu Natu, so iconic, so many people recreated that in the reel. Yeah. Fair enough, maybe if Shankar does this, makes a movie after this, he will update himself, because ये movie Let's see. 2020 में sign हुई थी, so 2020 में there was no Instagram reels. By the way, people still listen to Chalo Chale Mitwa. हाँ, because it's a good, first of all AR Rahman bro, AR रहमान तमिल में उसको पेरिय भाई बुलाते हैं, पेरिय भाई मतलब बड़ा भाई। Okay. So it is like, so whenever AR Rahman does something, उसको बोलते हैं पेरिय भाई संभवम। So पेरिय भाई संभवम मतलब फाड़ दिया इसने, आग लगा दिया। हाँ वही तो संभवम मतलब वही आग लगा दिया, दैट इज द फीलिंग। सो जब भी AR रहमान का कुछ ना कुछ आता है ना, तो बोलता है कि भाई दैट इज अ पेरिय भाई संभवम, तो वही है। सो दैट इज द थिंग, इधर आई वॉज मिसिंग AR रहमान। I mean, every movie I miss AR Rahman. Every movie जिसका songs I don't like. To give Taman a credit, Taman is the music director in this movie. The songs are not bad. The songs are good. मुझे बीट मुझे अच्छा लगा। Maybe हिंदी लिरिक्स के साथ भी कुछ नहीं गया होगा, वो ठीक है, बट आई लाइक द सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग्स भी कैची से BGM भी लगे। नहीं अच्छा लगा यार। कंपेयर दैट टू, देयर इज अ कोरस टू द BGM, राइट? लाइक नायक का देयर इज BGM ऑफ एवरी टाइम ही डज समथिंग, वो कुछ उखाड़ता है, ओके, देयर इज अ प्रॉपर, इट फील्स लाइक कोई चांट कर रहा है पीछे। सो वो दैट इज वही ना, तो दैट इज पेरिय भाई संभवम। हाँ, even in Shivaji the Boss, that is also, यहाँ पे there is that there, यहाँ पे है कोरस है, पीछे BGM बजता है, but It doesn't work. It is the standard EDM beat. Taman is a good music director, but he's no AR Rahman, and even he'll agree to it. Okay, so what else should we talk about? So let's talk about our favorite character, the brother, Mopi Devi's brother. oh yeah, I mean, there's not much to talk about outside of he's very like, I didn't think he would be this funny character when he was introduced. हाँ, उसको लगा था कि he is going to be another antagonist, primary, बहुत बड़ा conflict create करेगा। वो तो उसको तो आउट ही कर दिया, उसको तो वो तो ऐसे देगा उसने, वो ऐसे बताता है कि मैंने अपने बाप को टपकाया, फिर एकदम से वो चेंज हो जाता है कि यार cheering his name and then he starts cheering Mopi Devi's name. मोपी देवी ने, मैंने कहा वाह ये सही है। और फिर वही वो वाला सीन, वो अपना वही जो नेवल फेटिश जो तूने दिखाया था, मैंने कहा नहीं क्या We'll था get to the भाई। ethical issues बाद में, but लेट्स गेट टू दिस नाउ। कितना बाद में और कितना बात करेगा इसके बारे में, 2 घंटे होने वाले हैं। हाँ, अबे ये कुत्ते कितना भौंकते रहते हैं रात में, काम नहीं है इनको, हे भगवान। ये देख, अभी मैं शांत होता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं शांत रहता हूँ, सुन, तेरे को सुनाई देगा। this is like our Insta comment section. क्यों मतलब क्यों? अभी बोलेगा हाँ साले तुम लोग 2 घंटे भौंकते हो, हमें कुत्ता बुला रहे हो, वैसे बोलना। हाँ, हम भी भौंकते हैं, सब हम भौंकते हैं, तुम कमेंट्स में भौंकते हो, हम वीडियो बना के भौंकते हैं, दैट्स इट। अरे तुम भौंकना बंद करो यार, तंग हो गया मैं। चल ठीक है, लेट्स गेट टू द एथिक्स, लेट्स, एंड देन आफ्टर द एथिक्स इफ यू हैव एनीथिंग फर्दर, रैप इट अप।
No, just the ethics part. Because it needs to be addressed. I understand that you have some fetish, okay, with the navel, and but uh, just get over it. It doesn't need to be a part of what you're creating for the sake of it. When cinema was made and when someone might have celebrated this navel or something, heroine's navel, that was a decision taken from the existing fetish in the world. So उस टाइम के शायद मर्दों को पसंद होगा वो, बिकॉज प्रेफरेंसेस होते हैं किसी किसी के, तो वो चीज उन लोगों ने मूवी में दिखाना शुरू किया. फिर बाद में the younger generation is now getting exposed to that same fetish through your visuals and starting to develop this fetish. या पोकीमेन करके एक ट्विच स्ट्रीमर है. I'm not saying figured it out, she sort of talked about it, is that men, you just want glimpses, because if we show you the whole thing, you will never come back, or you lose some sort of interest. ठीक है. हाँ. So when you get glimpses, that turns you on. Okay, so when the sari is being worn, you Where get are a we? glimpse Ethics से हम कहाँ we are पहुँच getting गए? into हम लोग फेटिश बता रहे हैं. बॉलीवुड में भी देयर इज दैट फेटिश. ठीक है. ये है काफी जगहों पे, बिकॉज साड़ी इज लाइक कॉमन थ्रू. ओके हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू. वन थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट, जो भी बोलते हैं ना कि अरे साउथ में तो खाली नेवल फेटिश है, भाई बॉलीवुड में क्या फेटिश ऐसे देखे नहीं है तुमने? पूरा बिकिनी पहना के दे लिटरली शो यू ओनली फोकस ऑन दैट. क्लीवेज फेटिश बॉलीवुड में, क्लीवेज फेटिश है, आर्मपिट फेटिश है, सब कुछ तो चल रहा है. हर तो जगह इसलिए कहीं ना कहीं हाँ, फेटिश रहेगा ही. तो इसलिए इतना मत करो कि तुम ये जो साउथ के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं ना कि अरे साउथ तो खाली नेवल फेटिश है, भाई नेवल फेटिश साउथ में है तो तेरा दूसरा फेटिश बॉलीवुड में है. दे आर ओपनली अनअशेम्ड ऑफ इट एंड दे आर डूइंग इट. आई एम नॉट सेइंग दैट इज राइट, दैट इज आल्सो रॉन्ग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज जस्ट वन साइडेड. बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. प्लीज oppose both of them. Put a stop to both of them. If you want to stop, both of them need to be stopped. If you want to accept it, then both of them need to be accepted. Yeah, यहाँ पे, but the thing is like it should feel like, okay, you are not sort of glorifying it, or you are not sort of appealing It is to not those people who have that fetish. overdone. It should feel natural. It should feel natural. ठीक है कि हाँ ये हो रहा है, but that scene comes out very randomly कि वो जो कर रहा है. ठीक है यार, पर पता है एक चीज है, मैं बताऊंगा. वन थिंग विच आई अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट वो है कि वो जो विलन है ना, दैट गाय इज इंडल्जिंग इन इट, सो इट काइंड ऑफ सेट्स इट अप. इट सेट्स इट अप दैट ही इज सपोज्ड टू बी अ डिस्पिकेबल कैरेक्टर. उसमें नायक में तो वो हीरो ही कर रहा है. ओके, टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, यस, Ramcharan, amazing performance. Yes. So those who are Ramcharan fans, they will really like him, they will love him, but they will be disappointed that okay, this movie is not worth it. See, you can still enjoy this movie, but you will be bored. That is what I'm saying. You will be bored because there is nothing new. You will be predicting each and everything. और तुमको लगेगा कि मैं 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी है ना, ऑलमोस्ट 2 hours 45 minutes. 2 hours 45 minutes. The 2 hour 45 minutes here feel longer than the 3 hour 22 minutes from Pushpa. Apparently Pushpa's extended cut is releasing, जिसमें 20 मिनट और बढ़ा दिया. पे 4 घंटे. मैं चला भी जाता देखने के लिए पुष्पा 2, बट मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुका हूँ. मैं 4 घंटे थिएटर में बैठ के नहीं देख सकता. तो कुछ सीन्स OTT पे जब आएगी, then I'll check it out what the extra 20 minutes are, and then maybe we'll break it down if there is something वर्थ एनालाइजिंग. तो पुष्पा 2 जब OTT में आएगी तब देख के वील रिलीज अ सेपरेट स्मॉल पॉडकास्ट डिस्कसिंग दैट if there is anything worthwhile. But yeah, anyway, so what I was saying was, whose performance other than Ramcharan stood out for you? Yeah, just one thing. 2 hour 45 minutes here feel atrociously long compared to the 3 hour 22 minutes there, because उधर चीजें मूव हो रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, चीजें they are moving, थीम है, and then sequences are also interesting, very interesting. So that is why you are able to enjoy that movie much better than here. That doesn't mean I'm saying कि Pushpa 2, I don't want to get into the fan war, please. I know that there is a fan war going on between Allu Arjun and Ramcharan. I don't want to start that, I don't want to trigger that. But what I am saying is, unfortunately, Pushpa 2 is much more enjoyable than Game Changer. Yeah, there's one more reason here. Editing में you can see that
Pushpa 2, the edit flows a lot better. Shankar goes with rapid cuts. Rapid cuts. Okay. And someone is saying it is happening because ही इज थिंकिंग कि वो सोशल मीडिया में रील्स जो देखने वाले लोग हैं ना, उनको वो अटेंशन स्पैन इतना कम है, तो हर चीज को कट 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 करके दिखाओ. In the ethical reasons, we didn't talk about that glass guy. हाँ वो तो अरे वो तो चुतिया पे है. Also played off as laughs while he's like proper stalking. वो बता तो ना, दिस इज नॉट स्टॉकिंग. डेफिनेशन देता है वो. Don't play that off as laughs. Okay, all these things are very serious. Someone breaking the law is serious, right? अगर पुलिस आ रही है और तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो, मैंने सिर्फ देख सकता हूँ मैं, और लोग हंस रहे हैं. और पुलिस ऑफिसर से रामचरण पूछता है कि आपकी वाइफ को अगर किसी ने देखा कैसा लगेगा. वो बोलता है कि अरे मेरी वाइफ को तो कोई देखता ही नहीं है. हाँ, और बगल में पुलिस वाला वो बोलता है कि हाँ सही में नहीं देखता. अरे डूड, व्हाट आर यू प्रमोटिंग? हाँ, people are laughing. Exactly. That is so terrible. You are portraying, like, in the name of comedy, you are literally shaming a police officer. You are literally saying that a police officer is complicit. He is complicit in objectification, and he is literally disrespecting his own wife. अबे हमें woke बना दिया यार तुम. Woke बना रहे हो यार तुम हमको, कैसे कर रहे हो यार? When we talked about all women just talking about female stand-up comedians talking about periods and this and that, okay, there was a proper movement back then where all male stand-up comedians are talking about how bad their married life is and how terrible their wives are. वही continuation लगता है मुझे कभी-कभी कि कोई आके बोलता रहता है. So this joke I will find it 20 years ago. Exactly. I wouldn't find this now joke it is very problematic यार. Problematic तब भी था, तब बड़ा मजा आ रहा था तेरे को. तब I think we didn't realize कि क्या. We didn't real. अबे तो वही ना, 20 साल पहले कितने साल का था तू? बच्चा था तू. 20 साल पहले क्या समझ में आता है? 20 साल पहले कुछ भी दिखा दो हंसी आएगी. 20 साल पहले तेरे को वो जो ग्लास वाला जोक है उसको देख के हंसी आएगी तुझे. Yeah. So the performance which I really liked apart from this, the CM, the main CM. Yeah, the CM. He was nice. He was nice. His name is Srikanth, and there is no like outrightly bad performance in this film. Everything was functional. Even the main antagonist, he was giving a good performance. Not यूजुअली क्या होता है ना, लाइक कुछ मूवीज में, जैसे कि जवान देखी है तूने, जवान में विजय सेतुपति का जो रोल है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इट एलिवेट्स द मटेरियल जो उसको दिया हुआ है, जिससे तेरे को मजा आ रहा है देखने में. यहाँ पे ऐसा है कि वो रोल उस भाई को चला गया था जो बार बार उसको जोक कर रहा है, टकला हो गया रे, टकला हो गया करके वो जा रहा है. इनफैक्ट द रोल शुड हैव, द स्पॉटलाइट शुड हैव बीन ऑन दिस मोपी देवी. The interval, okay, one dynamic which I really liked was between the underling, जो उस मोपी देवी का अंडरलिंग होता है, जो कॉलेज में भी होता है, जो जिसको उसका एंड रामचरण के बीच का जो डायनामिक है, बिकॉज दैट इज सेट अप प्रॉपरली कि वो कॉलेज के टाइम से ही उसके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन में है. बट वो क्या हुआ, वो इंटरवल में इट पीक्ड, जब वो इंटरवल में उसको खत्म करने आता है, एंड देन दैट फाइट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, एंड इट इज मतलब इट डिड नॉट गो फुल पुष्पा. उसका हाथ एक बंधा हुआ है एंड एक लिमिटेशन दी है, एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग बीटन. वो भी थोड़ा अनरियलिस्टिक जोन में ही जाता है कि अरे तुम साथ में आओ ना, एक एक करके क्या आ रहे हो, साथ में आके खत्म करो. कॉमन थिंग नहीं. नाउ think about it, compare this to the opening fight scene with RRR में. Yeah, I know it is also, it's an exception यार. RRR is an exception. Unrealistic है, but still you can, इट इज डन इन अ बिलीवेबल मैनर. वो इधर भी थोड़े उसी जोन में गए, बट वो एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार वो एक एक करके आ रहा है, क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, सब मारो. बट आई अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही डिड नॉट कम आउट अनस्केथ्ड. कि उसको चक्कू खा ऑलमोस्ट जाने वाला था, अगर वो पुलिस वाला आके उसको रोकता नहीं ना, तो वहीं पे उसका खेल खत्म था. तो आई अप्रिशिएटेड दैट मोमेंट कि अच्छा है, लाइक देयर इज अ थॉट पुट टू इट. तो थोड़ा सा इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट मार्को. अरे कुछ हो सकता है उसको, ही कैन गेट हर्ट. मार्को को हो सकता है, जब उसकी परिवार खत्म हो रही होती है ना, तब उसको होगा सब कुछ. फिर परिवार खत्म हो जाएगी, परिवार खत्म हो जाएगी, नहीं उसका सारा परिवार खत्म हो जाएगा, उसकी निब भी खत्म हो जाएगी. उसके बाद वो परफ्यूम मारेगा, बाल काटेगा, नहाएगा धोएगा, फिर वो सूट पहन के जाएगा. वो नहीं है इसमें. तो वही आई अप्रिशिएट दिस वन पर्टिकुलर थिंग, आई अप्रिशिएट दिस. एंड वही, बट जो विलन होता है एंटागनिस्ट, ही डिसअपियर्स कंप्लीटली. फिर वो लास्ट में आता है
एंड वो लास्ट में क्या जेसीबी वेसीबी लेके आ गए, वो क्या Oh था yeah, भाई, वो पुलिस फोर्स को यूज करके ही शुड हैव स्टॉप्ड इट। मेरे हिसाब से क्या था गुंडों ना, को यूज व्हाट, करके इस डन इट। हाँ दैट इज व्हाट आई हैड अ प्रॉब्लम विद, कि भाई तुम जब गुंडों को यूज कर रहे हो, सो वो पुलिस वालों को भगाता है ये बोल के, एथिकल प्रॉब्लम में ये गिना जाएगा कि ये पुलिस वालों को भगाता है कि तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुंडों की जान गए तो परवाह कोई बात नहीं। वो लिटरली वो बंदा जिसको स्टार्टिंग में उसने ट्रैक में बांध के वो चला गया था, और उसको फिर वो स्टाइल मार के वो चक्कू काट के आता है, और फिर वापस उन्हीं बंदों को बुला रहा है। वाई वर दे कन्विंस्ड? देर वॉज नो सेटअप टू दैट फैक्ट दैट कि ये गुंडे आके इसकी हेल्प करेंगे इलेक्शन में ये करने के लिए। देर वॉज नथिंग टू मोटिवेट देम। इन शिवाजी द बॉस देर इज अ डेडिकेटेड सीन वेयर ही बीट्स अप ऑल द goons एंड देन ही विजिट्स remember. देम इन द हॉस्पिटल, और वो बोलता है कि भाई जिसने हमें मारने के लिए भी हमको चढ़ाया था वो भी हमें देखने नहीं आया, आप आए हो हमारे देखने। दैट सेट्स अप द ट्रांसफॉर्मेशन। इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, सो कैसे? सो वही दैट दैट इज अ वेरी, मतलब वो फ्लॉ, और वो तो पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया। जेसीबी वेसीबी ले आए, वो क्या योगी जी के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे क्या कि बुलडोजर राज चल रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है करके जेसीबी लेके आ गए इधर पूरा, कि ये करके पूरा। और वो ईवीएम को तोड़, आई मीन क्या है ये, जवान का क्लाइमैक्स उठा के लगा दिया। जवान में ईवीएम उन्होंने हड़प के रखा था, यहाँ वो ईवीएम तोड़ने आ गए क्या? शंकर और वो एटली बैठ के नोट्स एक साथ बना रहे थे क्या कि हाँ चल तू जवान में ये कर, मैं गेम हो चेंजर में ये सकता करता हूँ। है, इट कुड एक्चुअली हैपन। आई थिंक वी आर डन विद फाइनल थॉट्स मार देते हैं एक बार। फाइनल थॉट्स वही है कि अगेन वील कम बैक टू दिस वन थिंग, those who want to watch the movie, by all means watch the movie, but you will be bored. That is what I'm going to say. It is not a bad movie, but it is nothing new. So if you choose to stay at home and if you choose to watch older Shankar movie, शिवाजी द बॉस दोबारा देख लो तुम एंजॉय करोगे। बट ये मूवी जाओगे तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि शिवाजी द बॉस में तुमको पता है बट स्टिल देर इज सम फीलिंग टू इट, इमोशनल कोर वगैरह है, इसमें नहीं होगा। बट तुमको अगर तुम गए हो थिएटर में तो भाई अब देखो, बैठ के मूवी देखो। इट इज नॉट अनबेरेबल बट यू विल बी लाइक व्हेन यू लीव द थिएटर इट विल बी, यू विल फॉरगेट द मूवी कि हाँ ठीक है देख लिया, एंजॉय किया, आ गए। यू वोंट रिग्रेट वॉचिंग इट, बट यू विल बी लाइक कि देर इज नथिंग न्यू इन दिस। I will agree with like almost I think everything that you have said. I just want कि there has to be some level of subtlety in the storytelling, in the nuances. The rapid cuts do not work. They may work on Instagram or something, but in it sort of undercuts the emotion of the scene. If you're constantly cutting rapidly, एक तो मुझे वो scene का फील नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ओके, देन any filmmaker who has been in the game for a long time, learn to adapt with the times. Rajamouli has. Okay, Rajamouli has every time. If you see the techniques that he's using, the storytelling techniques, I mean, obviously his father is writing all of these things, but then you can see the people are working on the film and they're like, you talked about Prabhudeva, right? Prabhudeva, full respect as a choreographer, right? But यहाँ पे क्या हगा है? Okay, हगा नहीं है ब्रो, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, दे वर फॉलोइंग दैट ओल्ड पैटर्न। दिखाना है कि मैं वही बंदे बोल रहा को हूँ ना, अडेप्ट करो यार थोड़ा, कि see what the market wants, see what people are catching on to, ठीक है? Yeah. We have talked about like how Telugu cinema sort of has a format, ठीक है? Yeah. But वो format में try to explore something new. यहाँ पे they were trying to move away from the pattern, but then they kept coming back to the pattern. Yeah. वही प्रॉब्लम है कि तुम पुष्पा में भी देर इज सेम पैटर्न है, पुष्पा का भी दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ कमर्शियल तेलुगु सिनेमा, बट उसमें दे कीप मूविंग अवे। पैटर्न में वापस आएंगे भी तो वो इट विल वो बहुत दूर जाके वापस आते हैं। ये ऐसा है कि थोड़ा सा आगे के वापस आ गए, एक खींच लिया कि वो लीश में रखा है, थोड़ा सा आगे के खींच लिया उसको। वही प्रॉब्लम है इस मूवी की। दैट इज वाई वी कीप सेइंग कि यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं तुमको। बट इट्स नॉट अ बैड मूवी, इट्स नॉट अ बैड मूवी, मूवी इज फाइन, बट you won't find anything new. Okay, thank you for watching. Please subscribe, and if you learn something from this, then
It is great. If you disagree with anything that we have said, go to Yeah. the comment section, and if it is constructive, we will respond. We will definitely respond. Okay, thank you. चलो. feelings होती है feelings जरा समझो